بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر اپنے دیوان عام میں جلوہ گستر تھے کہ نقیب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فریادی محل کے دروازے پر کھڑا ہے، باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا باریاب کرو۔ چند لمحے بعد ایک ادیڑ عمر کا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ نے اس پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دور دور سے آئے فریادیوں کے مقدمات کی سماعت سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب شہنشاہ اس اجنبی شخص کی طرف مخاطب ہوئے، دربار شاہی میں کیا فریاد لائے ہو؟ جہاں پناہ ایک بہروپیہ ہوں، صرف اس تمنا سے گجرات سے حاضر ہوا ہوں کہ شہنشاہ ہند کے دربار سے اپنے فن کا کوئی اعزاز حاصل کروں۔ اس دربار میں اہل کمال کی قدردانی کا بڑا شہرہ سنا ہے۔ اورنگزیب نے زیر لب تبسم فرماتے ہوئے جواب دیا، تم نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ اہل کمال کی قدردانی ہمیشہ سے شاہی درباروں کا شیوا رہا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ ایک بہروپیے کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے وجود کو اصلیت کے سانچے میں اس طرح ڈھالے کہ نقل کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ تم نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو میں یقین کر لوں گا کہ تم اپنے فن میں کامل دستگاہ رکھتے ہو۔ اسی دن ایک قدردان کی طرح میں تمہارے کمال فن کی داد دوں گا۔ شہنشاہ کا یہ جواب سن کر خوشی خوشی بہروپیہ دربار سے رخصت ہوا اور اپنی قیامگاہ میں پہنچ کر کئی دن تک سوچتا رہا کہ کون سا روپ اختیار کیا جائے کہ بادشاہ کو بھرپور دھوکہ دیا جا سکے۔ ایک مہم سے واپس ہوتے ہوئے شہنشاہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ دلی کی راجدھانی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف عبادت خانوں اور درس گاہوں میں دعائے صحت مانگی جانے لگی۔ شاہی بیگمات نے نفلی روزوں کی منت مان لی۔ گلی گلی میں محتاجوں اور مسکینوں کو خیرات لٹائی گئی۔ علاج کے لیے ملک کے کونے کونے سے ماہر طبیبوں کا تانتا بند گیا۔ چند ہی دنوں میں شہنشاہ روح بصحت ہونے لگے۔ غسل صحت کے دن ساری راجدھانی خوشی کے شادیانوں میں ڈوب گئی۔ بیماری سے صحت یابی کے بعد آج پہلی مرتبہ شہنشاہ دربار عام میں تشریف لانے والے تھے۔ مشتاقان دید سے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑے ہوئے ہر شخص بادشاہ کی آمد کا منتظر تھا کہ اتنے میں نقیبوں نے آواز دی۔ سارا دربار سرو قد کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد اور ایام اقبال کی دعاؤں کی گونج میں شہنشاہ تخت آبنوس پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسی درمیان میں ایک چوبدار نے آ کر خبر دی، جہاں پناہ علالت مزاج کی خبر ایران تک پہنچ گئی ہے۔ علاج کے لیے شاہ ایران نے اپنا خصوصی طبیب دربار عالی میں حاضر کیا ہے۔ وہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ شہنشاہ نے اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے باریاب ہونے کی اجازت فرمائی۔ سارے درباری ایران کے شاہی طبیب کو دیکھنے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ حکمائے یونان کی دستار و ابا میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کی پیشانی سے حکمت و دنائی کی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پیچھے غلاموں کی ایک لمبی قطار تھی، جن کے سروں پر دعاؤں کے چھوٹے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ سارا دربار شاہ ایران کے جذبہ ہمدردی کے ستائش سے گونج اٹھا۔ شہنشاہ تھوڑی دیر تک نظر جمائے ہوئے آنے والے کو دیکھتے رہے۔ ایران کا طبیب جیسے ہی پابوسی کے لیے آگے بڑھا، شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ یہ جواب سنتے ہی مارے شرم کے بہروپیہ پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنے فن کی ناکامی پر اتنا قلق ہوا کہ الٹے پاؤں وہ دربار سے واپس لوٹ گیا۔ ایک عرصہ دراز تک وہ اپنی شکست کے غم سے نڈال رہا۔ آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ کر کھڑا کیا۔ آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ تھی۔ غروب آفتاب کے بعد دور افق مغرب پر حلال عید کی تمناؤں کی نگاہیں جم گئی۔ چند ہی لمحے بعد شور اٹھا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ قلعہ معلیٰ سے توپیں سرد ہوئیں اور سارا شہر مسرت و نشاط کی بارش میں نہا گیا۔ ہر طرف عید کی چہل پہل شروع ہو گئی۔
इज्जत व वकार की खुली हुई फजा में ईद की हकीकी खुशी हर घर से फूट पड़ रही थी। रात गए तक उलमा व मशाइख की बारगाहों से शुक्र खुदाबंदी की सदाएं बुलंद होती रहीं और आशिकाने इलाही तस्बीह तहलील के अनवार में नहाते रहे। ईद की दोगाना नमाज खत्म हुई। खुतबा वगैरह से फारग होकर मसरतों के फूल बखेरते हुए फरजंदान इस्लाम का ये उमड़ता हुआ हजूम अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गया। किला मोहल्ला की एक पुरानी रस्म थी कि नमाज ईद के बाद वालियान रियासत की तरफ से शहनशाह के हजूर में नजर गुजारी जाती थी। अब उसकी तैयारियां शुरू हुई थी। कीमती तहाइफ और बेशबहा जवाहरात के थाल लिए हुए नवाबों, राजाओं और जगीरदारों की मंडियां किला मोहल्ला की तरफ बढ़ रही थी। सदर दरवाजा से लेकर दीवाने आम तक महल का सारा हिस्सा दुल्हन बना हुआ था। नकीबों की सदाओं की गूंज में शहनशाह दीवाने आम में तशरीफ लाए। तख्त आबनूस पर जलवा गस्तर होते ही सलामी और ईद की मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। वालियान रियासत और साए ममलकत अपनी अपनी कुर्सियों पर एक कतार में बैठे हुए थे। बारी बारी एक एक करके सब ने शहनशाह के हुजूर अपनी अपनी नजर पेश की। आखिर में तुर्कस्तान का एक जोहरी उठा और उसने शहनशाह के हुजूर में एक छोटा सा संदूक पेश करते हुए कहा, इसमें बदखशां का वो लाल शबे चिराग है जो 1000 साल तक मरीख की खुनक चांदनी पर परवरिश पाता रहा। तब जाकर आज इसे पाएगा आली तक पहुंचने का एजाज हासिल हुआ है। बहुत सारे नामों से तुर्कस्तान के जवाहरियों ने उसे मौसूम किया है। फरमा रवाए हिंद के हजूर ये तोहफा नायाब पेश करते हुए आज मेरी मसरत की कोई इंतहा नहीं है। ये कहते हुए संदूक को पाएगा शाही में रख कर जैसे ही वापस लौटना चाहा था कि शहनशाह आलम औरंगजेब ने ज़ेरे लब तबस्सुम फरमाते हुए जवाब दिया, इस बार भी हमने तुम्हें पहचान लिया। ये अल्फाज तीर की तरह उसके दिल में तराजू हो गए। आलम इज़्तिराब में बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभाल सका। इस बार की चोट इतनी गहरी थी कि बहुत दिनों तक उसके दिल का जख्म रसता रहा। शिकस्त के बाद इस बार उसने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसके फन की गैरत जाग उठी और आखिरी बार वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कुछ ही अरसा बाद दक्कन के इलाके से यह खबर मौसूल हुई कि वहां बहुत से राजाओं ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है और वो बगावत के लिए उठ खड़े हुए हैं। बादशाह ने खुद बागियों को कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए बजाते खुद दक्कन की मुहिम पर रवानगी का इरादा फरमा लिया। मुल्क के गोशे गोशे से एक अजीम लश्कर की तरतीब का काम शुरू हो गया। सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाने के बाद एक तारीखे मुअय्यन पर शहनशाह की रवानगी तय पा गई। आज सुबह सवेरे हजरत औरंगजेब आलमगीर एक लश्कर जरार अपने जुलूस में लिए रवाना हो गए। जिन जिन गुजरगाहों पर से शहनशाह औरंगजेब गुजरते थे सारे इलाके में धूम मच जाती थी। सफर का रूट आबादियों और शहरों से हटकर ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों को अबूर करते हुए बनाया गया था। सुबह शाम मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ये मुहिम नहायत संगीन होती जा रही थी। बागियों के छोटे छोटे हलके आपस में मुत्तहिद होते जा रहे थे। इस तरह दक्कन में एक बागियाना कुव्वत मुस्तहकम होती जा रही थी। इसलिए इस सफर में हर दूसरे तीसरे पड़ाव पर नई नई कमक फौज में शामिल होती जा रही थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर तबा बुजुर्गाने दीन और औलियाए मुकर्रबीन के साथ गहरी अकीदत रखते थे। इसलिए दस्तूर में था कि रास्ते में जहां जहां भी किसी बुजुर्ग का मजार मिलता काफिला रोककर मजार पर हाजिरी देते, फातिहा पढ़कर फतो नुसरत की दुआएं मांगते और रवाना हो जाते। दौरान सफर एक पहाड़ी सिलसिले को अबूर करते हुए एक जगह से गुजरे तो देखा कि कई हजार इंसानों का हजूम लगा हुआ है। खैमों और फूंस के झोंपड़ों की एक बस्ती बस गई है। कोहसार के वीरानों में आदमियों का यह मेला देखकर शहनशाह को बड़ी हैरत हुई। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि करीब ही पहाड़ी की खो में
एक खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं जिनकी ज़ियारत और हसूल फैज़ो बरकत के लिए महीनों से यहाँ मेला लगा हुआ है। सैकड़ों बंदगाने खुदा यहाँ से फैज़ याब होकर वापस लौटते हैं। लोगों ने बताया कि उनकी अजीब शान है, ना वो खाते हैं ना पीते हैं और ना किसी से बात करते हैं, सदा आंखें बंद किए हुए याद इलाही में महव रहते हैं। उनके करीब पहुंचकर दिल की हालत गैर हो जाती है। उनके पुरनूर चेहरे पर नजर डालने की ताब बड़ी मुश्किल से किसी के अंदर पैदा होती है। ये हालात सुनकर औरंगजेब आलमगीर के दिल में भी उनकी ज़ियारत का इश्तियाक पैदा हो गया। अमीर लश्कर को हुक्म दिया कि यहां पड़ाव डाल दिया जाए। दम के दम में पहाड़ का तवीलो अरीज दामन एक शहर में तब्दील हो गया। शाम हो चुकी, इसलिए तय पाया कि सुबह के उजाले में दरवेश की ज़ियारत के लिए शहंशाह तशरीफ ले जाएंगे। सुबह होते ही पहाड़ की खो तक सारी गुजरगाह को सिपाहियों ने हमवार कर दिया। एक खुदार सीधा बुजुर्ग की ज़ियारत की नीयत से शहंशाह ने गुस्ल किया, नए कपड़े जेब तन फरमाए, 2 रकत नमाज नफल अदा की और बरहना पा चल खड़े हुए। अकीदत का एहतमाम में शौक देखकर लोगों ने बादशाह की नेक नियति और दरवेश नवाजी का एतराफ कर लिया। गार के धाने पर पहुंचकर शहंशाह रुक गए। खादम ने बताया कि अभी हजरत आलमे इस्तगराक में हैं, थोड़ी देर तवक्कुफ किया जाए। शहंशाह मुजस्समा अकीदत बने हुए इंतजारे शौक में खड़े रहे। कुछ वक्फे के बाद खादम ने आकर इतला दी कि अब अंदर तशरीफ ले चलिए। अंदर के हिस्से में चूंकि रात की तरह अंधेरा था, इसलिए जगह जगह काफूरी मशल रोशन कर दी गई थी ताकि शहंशाह को वहां पहुंचने में जहमत ना हो। खुदा रसीदा बुजुर्ग के करीब पहुंचकर बादशाह बहुत ज्यादा मुतासर हुए। फर्शे जमीन पर अदब से दोजानों बैठ गए। देर तक उनके रूहानी फ्यूजो बरकात के उम्मीदवार बनकर खामोश बैठे रहे। काफी अरसा गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपनी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की दरखास्त की, लेकिन दरवेश ने बादशाह की अर्जदाश्त की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। वो बदस्तूर अपने आलमे महवियत में डूबा हुआ था। उसके इस्तगना की ये शान देखकर बादशाह और ज्यादा मुतकिद हो गया। काफी देर गुजर चुकी थी, इसलिए बादशाह ने वापसी का इरादा किया। खादम बाहर निकल चुका था। अब मुकम्मल तन्हाई का आलम था। बादशाह ने दमे रुखसत दरवेश की खिदमत में अशरफियों का एक तोड़ा बतौर नजराना पेश किया और उठते हुए जैसे ही वो दस्तबोसी के लिए झुका, बहरूपी ने दोनों हाथ से बादशाह के कदम थाम लिए। बस हो गया जहां पनाह, मेरे फन का ये आखिरी स्टेज था। मैं दरवेश नहीं हूं, वही बहरूपिया हूं जिसे 2 बार आपने शिकस्त दी है। इतनी बड़ी गुस्ताखी मुझसे सरजद नहीं हो सकती कि आप मेरे हाथ का बोसा लें। यह जवाब सुनकर बादशाह पर एक सख्ते की कैफियत तारी हो गई। आलमे तहीर में देर तक वो खामोश रहा। थोड़ी देर बाद जब हैरत का तलस्सम टूटा तो इरशाद फरमाया, आज मैंने तस्लीम कर लिया कि तुम अपने फन में कमाल हो। अब इस खुशी में कि तुमने मेरे ऊपर फतह हासिल कर ली है, अशरफियों की ये थैली कबूल कर लो। तुम्हारे फन का सही हक उस वक्त अदा करूंगा जबकि किला मोहल्ला दिल्ली में तुम मुझसे मुलाकात करोगे। दक्कन की मुहिम से फारग होकर जब मैं दारुल खिलाफा को वापस लौटूंगा तो तुम्हारा नहायत शिद्दत से इंतजार करूंगा। ये कहते हुए जैसे ही बादशाह ने कदम बढ़ाया, बहरूपी ने दामन थाम लिया। जहां पनाह अशरफियों की थैली लेकर अब मैं क्या करूंगा? अब तो दिल की दुनिया ही बदल गई है। आज तक हकीकत के जिस चेहरे पर बेशुमार पर्दे पड़े हुए थे, अब खुली आंखों से उसे बेनकाब देख रहा हूं। फकीर दरवेश की नकल में जब यह तासर है कि किश्वर हिंद के शहंशाह की मुअज़्ज़ज़ पेशानी मेरे आगे झुक गई, तो असल की तरफ अगर मैं रुख कर लूं तो किसी और अजाज की हमें क्या जरूरत है। ये कहते हुए एक चीख मारी और जेबो गिरेबान की धज्जियां उड़ाता हुआ चश्मे जदन में निगाहों से ओझल हो गया। बादशाह पर फिर एक सख्ते की कैफियत तारी हो गई। इस रिक्कत अंगेज वाकया के तासर से आंखें भीग गईं। गार की तन्हाई में देर तक सोचते रहे।
खुदा की शान भी कैसी बंदा नवाज बेनियाज है। कोई उम्र भर झक मारता है तो दरवाजा नहीं खुलता, और किसी के लिए एक ही लम्हा आतशी जिंदगी भर की गफलतों का कफारा बन जाता है। फिर बादशाह की तवज्जो तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ मबजूल हुई। खुदा शनासी और फकीर दरवेशी के नकालों ने दुनिया को कैसे कैसे लूटा होगा, कौन जानता है। इस राह का फरेब खोरदा एक मैं ही नहीं था, मेरी तरह लाखों अफराद शैतान के मकर का शिकार होते होंगे। इस राह के फरेब से बचना कितना मुश्किल है। ऐ परवरदिगार, तू ही अपने महबूब की भोली भाली उम्मत को वक्त के फरेबकारों से बचाना।